Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. Today's topic: application of Ampere's second law. Magnetic field due to a current through a very long circular cylinder. आज का जो हमारा एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है the magnetic field due to a current through a very long circular cylinder. इससे पहले मैंने एम्पियर सेक्टर लॉ का वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जिससे देख सकते हो. फर्स्ट एप्लीकेशन भी करा चुका हूं मैं, तो आप वहां से देख सकते हो. यदि किसी तरह की कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा. ठीक है, ओके. चलते हैं अपने टॉपिक पे. आज का मेरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर. सबसे पहले एक सिलेंडर बना लो. लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर इसलिए डॉटेड लाइन बनाया यहाँ पे कि बहुत बड़ा है. जितनी हमें स्टडी करनी है वो हमने बना लिया यहाँ पे. अब इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है. एक तो पॉइंट रखना है कि आउटसाइड द सिलेंडर, एक सरफेस पे रखना है, एक आउटसाइड और एक इनसाइड. ये 3 पॉइंट आपको याद स्टडी पे करना है. तो सबसे पहले ये लिखा हमने, पॉइंट P इज लाइंग आउटसाइड द सिलेंडर, दैट इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. यहाँ पे R जो था कैपिटल R, दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर. क्या था R आपका? R इज रेडियस ऑफ सिलेंडर. ठीक है. और जो आपका स्मॉल r है, स्मॉल r दैट इज OP इक्वल टू स्मॉल r. जो पॉइंट लिया हुआ आपने, ये मत समझना कि अब कैपिटल r है तो कैपिटल बड़ा होता है, स्मॉल छोटा होता है. ऐसा ही कुछ नहीं है. आप कुछ भी ले सकते थे इसमें. स्मॉल और कैपिटल r के मतलब एक्स वाई जेड ले लो, कुछ ले लो, कोई भी ले लो, कुछ में कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो रेडियस से बाहर रखा हमने, इसलिए क्या होता है, r इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब OP इज ग्रेटर देन रेडियस. ओके, कम टू द टॉपिक. यहाँ पे एक चीज और भी लिया हमने. स्मॉल एलिमेंट आपने लिया था P, dl जिसकी लेंथ था, और B मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पे. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ B एंड dl आर सेम. डायरेक्शन ऑफ B and dl are same. That is theta equal to 0 degree. क्या होगा? The direction of B and dl are same. Direction of B and dl are same. That is theta equal to 0. From Ampere's second law. From Ampere's second law. What is Ampere's second law? You all remember that. What is Ampere's second law? B dot, total integration of B dot dl. Total integration of B dot dl vector form equal to mu naught into I. Mu naught times the current. Total integration of B dot dl equal to mu naught times the current. Okay. Come to the topic. A dot B. What is A dot B in the vector? A dot B, that is AB sin theta. AB cos theta. AB cos theta. Write down here integration of B dl cos 0 degree. Why we write 0? Why we write 0? Because theta equal to 0 degree. Because theta equal to 0. Write down AB cos 0 degree. Okay. What is the cos value of cos 0? Cos 0 is 1. So write down B dl into 1 equal to mu naught I. What is mu naught into I? Same. Mu naught into I remains the same. Put the value of cos theta equal to 1. Write down B dl equal to mu naught I. Mu naught I. B dot dl equal to mu naught into I. B in total integration of dl equal to mu naught into I. कुछ नहीं करा हमने, B को बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से. टेक आउट B
What is the iteration of total iteration of dl? Closed circular loop है, it is a parameter 2 pi r equal to mu naught I, that is a mu naught I. B into 2 pi r equal to mu naught into I. What is the value of B? B equal to mu naught I upon 2 pi r. इसको राइट साइड लेके चले गए, तो राइट साइड ले जाओगे तो डिवाइड, मल्टीप्लाई बिकम्स इन अ डिवाइड, then it becomes mu naught upon 4 pi into 2I upon r. B equal to mu naught in I upon 2 pi r. Mu naught by 4 pi into 2I into r. This is the final answer. Please write down. फिर next कराता हूँ मैं आपको. Okay. Comes on the second case, when P lies inside the point circle. मतलब P जो point होगा वो यहाँ से हटके inside मैं इसी डायग्राम बनाता हूँ. P takes that point. This is the R, point P, direction of B and DL. B. Okay. Second case, case number 2. आउटसाइड को चेंज करके इनसाइड लिखना. इनसाइड और स्मॉल r is less than capital R. Small r is less than capital R. Okay. अब यहाँ पे दो कंडीशन हमें बन जाएगा. पहला कंडीशन होगा इफ द करंट इज ओनली द सरफेस ऑफ द सिलेंडर. यदि करंट आपका सरफेस ऑफ सिलेंडर पे ही है, विच इज सो इफ द सिलेंडर इज हॉलो. इट मींस दो केस होगा. इफ सिलेंडर इज हॉलो देन करंट ओनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर. ठीक है, सिलेंड्रिकल सीट टाइप का होगा. देन I इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम द एम्पियर सर्किट लॉ B इक्वल टू 0. इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा I 0 हो जाएगा और हमारा B इक्वल टू 0 हो जाएगा. इस कंडीशन देखो, पहला कंडीशन था आपका फर्स्ट कंडीशन, इफ द करंट इज ओनली द सरफेस ऑफ cylinder which is so if
the cylinder is hollow. Or cylinder cylindrical sheet, then I equal to 0. Then I equal to 0 if the current is only the surface of cylinder, which is so if the cylinder is hollow. यदि आपका सिलेंडर है और ये hollow सिलेंडर होगा, सीट शेप का होगा, तो सिलेंडर अंदर में खाली होगा, hollow, तो अंदर में आपका कोई करंट नहीं होगा. That is I equal to 0. From Ampere circuit law, Ampere circuital law, that is B dot dl equal to mu naught into I. म्यू नॉट इंटू आई. तो यहाँ पे हमारा I इज 0, तो म्यू नॉट इंटू 0, दैट इज 0. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ बी एंड डी एल यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ बी एंड डी एल आर सेम, दैट इज बी डॉट बी डी एल कॉस 0 डिग्री. देयरफॉर बी को बाहर कर दो, डी एल इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0. या और देखना चाहो आप, जैसे मैंने पीछे लिखा था, दैट इज b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 0, दैट इज b इक्वल टू 0 अपॉन 2 पाई आर. देयरफॉर b इक्वल टू 0. b इक्वल टू 0 व्हेन सिलेंडर इज हॉलो. यदि आपका हॉलो सिलेंडर होगा तो ये होगा आपका b इक्वल टू 0. क्यों हुआ? क्योंकि हॉलो सिलेंडर में इंटरनल जो आपका करंट होगा वो 0 होगा. इंटरनल करंट 0 होगा तो म्यू नॉट इंटू आई है, तो म्यू नॉट इंटू आई 0, तो बी इक्वल टू 0. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतने स्टेटमेंट नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो. इफ द करंट इज ओनली द सरफेस ऑफ सिलेंडर देन इज सो इफ द सिलेंडर इज हॉलो फ्रॉम एम्पीयर सर्किट लॉ बी इक्वल टू 0. डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है. इस केस में केवल जो आपका कंडीशन है उस केस में आप कहते हैं कि आपका सिलेंडर दूसरा कंडीशन है, इस सिलेंडर आपका हॉलो नहीं है, when cylindrical is not hollow. If the cylinder is uniformly distributed throughout a cross section of a conductor, then the current through the closed surface is, आप जो करंट होगा हमारा क्लोज सरफेस का वो क्या होगा वो निकालना है, ठीक है. बी पार्ट है इसका, if the current is uniformly distributed through throughout a cross section throughout the cross section the conductor then the current through
closed path L is I dash equal to, अब देखो यहाँ पे दिया if the current is uniformly distributed throughout a cross section, the conductor, then the current through a closed path L. यहाँ पे करंट जो क्लोज पाथ L का होगा वो क्या होगा, क्लोज पाथ L का करंट वो निकालना है हमें। तो किसी क्लोज पाथ का निकालना है आपको करंट, तो टोटल जो आपको I डैश होगा वो टोटल करंट डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ओके, जैसे यूनिटरी मेथड लगाते हो ना कि 25 पेन की कीमत 500 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी और 10 पेन की कीमत कितनी होगी, ऐसे यूनिटरी मेथड लगाया हमने। तो सिंपल एज इट इज जैसे लगाते हो आप, जैसे मान लो कि कहता हमने कि 10 पेन की प्राइस जो है 100 रुपीज है, तो आपको 2 पेन की प्राइस निकालनी है। 2 पेन की प्राइस निकालने के लिए क्या करते हो आप, 1 पेन की प्राइस निकालोगे, 100 अपॉन में 10 करोगे, और 2 पेन की प्राइस निकालनी है तो 2 लिखोगे तो इंटू 2 कर दोगे, दैट इज कितना होगा 20 रुपीज। ऐसे निकाला हमने, जितनी टोटल था उसको डिवाइड कर दिया एरिया को, और जितने एरिया का आपको निकालना उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे टोटल जितनी क्वांटिटी था उसको डिवाइड कर दिया और जितनी क्वांटिटी का आपको निकालना मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिटरी मेथड लगाया हमने, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया कुछ भी। तो आपको जब भी आई डैश राइट डाउन, आई डैश इक्वल टू आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, कैंसिल आउट पाई टू पाई, आई डैश बिकम आई डैश इक्वल टू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। पहले भी आपने इक्वेशन लेट करा होगा तो उसको इक्वेशन 2, 3 जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ जाओ अब नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ बी एंड डी एल आर सेम, द डायरेक्शन ऑफ बी एंड DL are same, that is theta equal to 0 degree. That is theta equal to 0 degree. The direction of B and DL are same. Both B and DL are same direction. Therefore theta equal to 0 degree. From Ampere's second law, from Ampere's circuital law. What is Ampere's second law? Total integration of B dot dl equal to mu naught times the current. Total integration of B dot dl equal to mu naught times the current. क्या होता है mu naught times the current का? तो that is write down B dl cos B into dl cos 0 degree equal to mu naught into I. Mu naught into I. Why we write the cos 0 degree? Because A dot B equal to AB cos theta. वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, A dot बताया था पीछे आपको मैंने, A dot B equal to AB cos theta and theta is 0. That's for why we write down the B dl cos 0 degree. B dl cos 0 degree. Again we write A dot B equal to AB cos theta. So B dot dl equal to B dl cos theta, that is B dl cos 0 degree, because theta equal to 0 degree. Because theta equal to 0 degree. Okay, you know that the cos 0 is 1, so you write here B dl into 1 equal to mu naught into I. What, right? Mu naught into I. What is the value of B को हमने बाहर करना, that is dl equal to mu naught, and thus there is write down I equal to I dash. I equal to I dash because the current in this loop is I dash. And put the value of I dash from equation number first. From first write down I r square upon r square from first.
from equation first. Write the value of I dash, that is a I dash equal to I r square upon r square, capital R square. Okay. What is the value of dl? B into 2 pi small r equal to mu naught I r square upon capital R square. Total integration of dl, that is a 2 pi r, 2 pi r. Then b equal to, सिंप्लीफाई करो इसको, 2 pi r को नीचे लेके चले जाओ, दैट इज राइट डाउन म्यू नॉट I r square upon 2 pi r into r square, capital R square. 2 pi r upon capital R square. एक r से एक r को कैंसिल कर सकते हो आप, कैंसिल आउट 1 r, 1 r कैंसिल आउट 1 r. एक चीज और यहाँ पे ना, यहाँ पे म्यू नॉट नहीं होगा, फिर म्यू हो जाएगा ओनली. म्यू नॉट तब होता है जब आप किसी मेटेरियल मीडियम वैक्यूम में होगा या स्पेस में होगा तो होगा, इस कंडीशन में म्यू नॉट लेते हैं. लेकिन हमने आई लेना, म्यू नॉट आई होता है, म्यू नॉट इंटू आई. लेकिन यदि आप किसी मटेरियल के अंदर मिलोगे तो म्यू हो जाएगा, म्यू इंटू आई नॉट, आई नॉट करा हमने, आई डैश करा, म्यू नॉट इंटू आई डैश. तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू डाल दो, आप क्या करो, म्यू नॉट की वैल्यू डाल दो. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इन द टर्म्स? आप देखो क्या होता है, आपने जस्ट पढ़ा था म्यू का रिलेशन, जो पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था म्यू का रिलेशन, म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर, म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर रिलेटिव. तो यहाँ पे एम भी लिख सकते हो आप, यदि कुछ नहीं है तो म्यू डायरेक्ट म्यू लिखो या म्यू एम लिख दो, एक ही चीज है. तो राइट डाउन म्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट. तो राइट डाउन हेयर, यहीं पे लिख दो आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यहां पे लिख दो आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर. ओके. उसके बाद आपने देखा कि ये कटिंग हो गया, क्या क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख दो. क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर. ओके. एक बार मैं रिपीट करता हूं. इफ द करंट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ क्रॉस सेक्शन, the conductor, then the cross current through the closed path L. अब जब करंट आपका क्लोज पाथ L से था वो कितना होगा, सबसे पहले करंट I निकाला हमने, I डैश इक्वल टू I अपॉन टोटल एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू जितने का निकालना है आपको, दैट इज अ स्मॉल पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल आउट, पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, the direction of B and DL are same, the direction of B and DL are same, that is theta equal to 0 degree. Write down theta equal to 0 degree. From empirical law, B dot DL equal to mu naught into mu into I dash, that is a B DL cos 0 equal to mu into I dash. Okay. Comes next value, cos 0 is 1, B DL equal into 1 equal to mu naught mu into I dash. B DL टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, बी को बाहर कर लिया हमने, बी डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू इंटू आई डैश की वैल्यू डाल दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ओके. अब क्या करो, म्यू नॉट, म्यू जो की थी वैल्यू ये निकाल के दिखाया हमने, म्यू क्या होता है आपका, म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर. क्रॉस में चेंज कर दो आप डायरेक्शन, तो क्या होगा आपका, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दैट इज बी म्यू नॉट इंटू म्यू आर. बी इक्वल टू, इसको नीचे लेके चले जाओ, म्यू नॉट म्यू आर आई आर स्क्वायर अपॉन बी पाई आर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू आई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया. ठीक है. थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ. ये जो चीज था इसको थोड़ा क्लियर करके यहाँ पे लिखता हूँ. बी इक्वल टू क्या होगा आपका, म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर.
ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, बी का और आर का क्या रिलेशन है, देयरफॉर बी और आर का जो रिलेशन हो गया, देयरफॉर बी प्रोपोर्शन टू आर। इक्वेशन नंबर 2 कर लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लो, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका ग्राफ है, रिलेशन क्या होता है, ग्राफ रिलेशन, तब ठीक है, द प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर फ्रॉम अ करंट पासिंग थ्रू द सॉलिड सिलेंडर। कि जो सॉलिड सिलेंडर से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का, जैसे हमने डिस्टेंस एक बार आउटसाइड रखा फिर इनसाइड रखा, जैसे जैसे डिस्टेंस का चेंज करते जाओगे तो बी की वैल्यू जो है चेंज होता जाएगा। तो इन दोनों में ग्राफिकली क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। इसे आपने नोट डाउन कर लिया, मैं हटाता हूं इसे। क्वेश्चन होगा प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B and distance from the axis of cylinder from the axis of cylinder from a current flowing through a solid cylinder. Through the solid cylinder. Plot a graph between the magnetic field induction B and the distance from the axis of cylinder from a current flowing through a solid cylinder. ठीक है, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज अ बी रिलेशन बिटवीन बी एंड आर, दैट इज आर जो हमारा यहां से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को लेना है, बी एंड आर का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो इसमें हमने दो रिलेशन देखा था, आउटसाइड जब सिलेंडर था तो बी का रिलेशन बी रिलेशन था आपका, बी रिलेशन 1/r²। क्या था बी का रिलेशन 1/r², ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला था आपका बी इक्वल टू, जब आपने फॉर्मूला निकाला था क्या निकाला था, बी इक्वल टू μ0/4π2I/r²। तो यहाँ पे r² जो था आपका वो नीचे में था, दैट इज रिलेशन हो गया आपका ये। कब था, जब आउटसाइड था पॉइंट, P लाइज आउटसाइड द सिलेंडर, P आउटसाइड द सिलेंडर था। इनसाइड का भी जस्ट बताया मैंने आपको, इनसाइड का क्या बताया था, B इक्वल टू, अभी जस्ट लिखा था B इक्वल टू μ0 इंटू μr I स्मॉल r अपॉन 2 कैपिटल R²। तो यहाँ पे जो रिलेशन था, ये क्या रिलेशन था B का, B इज प्रोपोर्शन टू R, इसमें रिलेशन है B प्रोपोर्शन टू R। इसमें आपका ये जो R है वो नीचे ही है, ऊपर नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे था और इस कंडीशन में आपका ऊपर है R रिलेशन। अभी आपको थर्ड इक्वेशन लिखा था हमने, थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। तो आपको केवल दो चीज याद रखना है, you remember only two things. First, B proportion to 1/r², and second, B proportion to R. These two cases. This is the outside, this is the inside the cylinder. Okay? ग्राफ ड्रॉ करता हूं।
इस एक्सिस पे बी लेना और इस पे आपका डिस्टेंस था आर। ओके, यहां से यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इसके बाद आउटसाइड जो सिलेंडर था उसमें कर्व होगा। थोड़ा सा पैराबोलिक बना लो आप। मैक्सिमम व्हेन r इक्वल टू r, सरफेस ऑफ सिलेंडर व्हेन r इक्वल टू r, ये मैक्सिमम होगा, ये b मैक्स होगा इस कंडीशन में। यहाँ पे b प्रोपोर्शन टू r, यहाँ पे b प्रोपोर्शन टू स्मॉल r स्क्वायर, b प्रोपोर्शन टू स्मॉल r स्क्वायर। इसको डॉटेड लाइंस आगे कर लो, इसको r नॉट लिख दो, दैट इज द b नॉट magnetic field. This is the distance from center. Distance from center. Distance from center. ये हमारा ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई क्योंकि दैट इज द डायरेक्ट रिलेशन था। ये था इनसाइड, इनसाइड का ये रिलेशन था, ये था आउटसाइड, क्या था आपका आउटसाइड। तो पहले आपको ये रिलेशन बनाना था इनसाइड, क्योंकि हम सेंटर से चल रहे हैं तो सेंटर ओरिजिन यहाँ पे था, पहले इनसाइड आएगा फिर होगा आउटसाइड, दैट इज द आउटसाइड इज b प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर। b प्रोपोर्शन टू क्या होगा आपका 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो इनसाइड में डायरेक्ट रिलेशन था इसलिए स्ट्रेट लाइन बना, और ये आपका b प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर इसका पैराबोलिक शेप का होगा, ये पैराबोला को फॉलो करता है तो पैराबोलिक शेप का बना दिया, r स्क्वायर था तो इसलिए डाउनवर्ड फॉल पैराबोलिक शेप। ओके, आगे समय तो इसी तरह से आपको बनाना है